Okay, so good morning, everyone. The topic for today's lecture is refractory materials, and we will be discussing basic about the refractory materials. So the content is so the content is uh, the things that we will discuss in this is first, what is the role of refractory material? What are refractory material? That is the introduction we will be discussing. Requirement, what is the need of refractory materials in the industries? What are the various properties that the refractory materials must possess, and what are the various types of refractory materials? These things we will be discussing in refractory materials. Now moving to the next one. First, what is the role? So what is the role of refractory material? As you all know, whenever we are producing any material, you know that most of the time we are using steels in our daily life. ठीक है, हमारी जो भी डेली लाइफ होती है उसमें हम स्टील को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो अगर स्टील की बात करेंगे तो स्टील को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, उसकी मेल्टिंग वगैरह ये सारी चीजें होती हैं. तो स्टील को जब आप मेल्ट करोगे तो वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होती है. यू नो, जब उन चीजों को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करेंगे तो उस हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए यू रिक्वायर सम मटेरियल्स. Those materials are called refractory materials. So obviously we are going to discuss the things in detail. Refractory materials have a crucial impact on the cost, obviously the cost and the quality of the steel produced. So basically we are using these materials as you all know that steel products are most commonly used in the daily routine or in the daily life. So whenever the refractory materials, these materials have crucial, or you can say they have a large impact on the cost as well as the quality of the steel products. तो जो भी स्टील बनती है उन सारे स्टील के प्रोडक्शन पे, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पे भी इन सारे मटेरियल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी कॉस्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो अगर हम सेकंड पॉइंट बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द स्टील ऑन द स्टील प्रोडक्ट्स. आपको पता है कि स्टील जो होती है वो एक टाइप की स्टील नहीं होती. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स आर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एंड देयर cleanliness requirement in the recent years have increased and they demands the high quality refractory. Means, as you all know that the melting point of low carbon steel, melting point of medium carbon steel, melting point of high carbon steel, melting point of stainless steel, the melting point is different for different types of steel. Hence, to produce the high quality of steels, we require high quality of refractory material in our daily life. Why? Because we have to manufacture those components, manufacture those steels. So the steel making requires high temperature and the order of 1600 degrees centigrade. As you all know that the 1600 degrees centigrade is a high temperature whenever we are melting or producing the steel. Okay, and in addition, steel making handles high temperatures phases like molten steel, slag, and hot gases. These things are these phases are handled whenever you are producing the steel, and these stages have very high temperatures. So to resist these high temperatures, we require some materials, and these phases are chemically reactive. Chemically reactive means whenever you are increasing the temperature, these phases like the slag, molten steel, slag, or hot gases, when comes in the contact of the material, may react with the materials that comes in contact with the steel. मान लिया कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपने स्टील को मेल्ट किया, तो ऑब्वियसली these materials, these steel, molten steel, slag may comes in contact with the with this material, that is a refractive material. So when it comes in this contact, obviously it will produce some effect. So the chemical reactions may take place. So these materials or these phases means the phases are molten steel, slag, or hot gases. These phases when comes in contact, they will be chemically reactive and hence refractory materials are required to produce steel. ठीक है, इसीलिए
रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की जरूरत भी हम लोगों को पड़ती है. दिस इज द बेसिक रोल ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल. एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस कैटेगरी इज high quality refractory at a cheaper cost is the main requirement because the cost of refractory add into the cost of product. तो आपको पता है कि भाई अगर if you are producing the steel, ये स्टील आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको हाई क्वालिटी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, जब हाई क्वालिटी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा होगी. इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें हाई क्वालिटी रिफ्रैक्टरी मटेरियल लो कॉस्ट पे मिले, जिससे जो स्टील प्रोड्यूस होगी उस स्टील की कॉस्ट जो होगी वो भी कम होगी. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, दिस इज अ बेसिक रोल ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल. नाउ टेल मी, सो दिस इज द बेसिक रोल. मूविंग टू द नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस is the a basic introduction of refractory material. So obviously till now I have cleared that refractory materials are those materials which are able to resist very high temperature. Okay, so the things that is given here is refractories or refractory materials जो होते हैं उनको हम refractories भी बोलते हैं. ठीक है, refractory materials are also called as the refractories, and these are the inorganic non-metallic material. These are inorganic, means they doesn't contains carbon, non-metallic material which can withstand very high temperature without undergoing any physiochemical changes. ठीक है, जो भी फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं, फिजियो का मतलब होता है उनकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता, केमिकल मतलब वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, फिजियो को केमिकल चेंजेस कोई भी नहीं होता whenever wear comes in contact with the high temperature application. तो ऐसे मटेरियल जो इनऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं, साथ ही साथ वो हाई टेम्परेचर को बियर कर लेते हैं विदाउट एनी फिजियोकेमिकल चेंजेस. फिजियो मतलब विदाउट एनी फिजिकल चेंजेस, विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, बिकॉज दे डजंट रिएक्ट विद द मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स, while remain in contact with the molten slag, metal and gases. ठीक है, तो जो चीजें अभी हम लोगों ने फेजेस की बात की थी, जिसमें मोल्टन स्लेग हो गया, मोल्टन मेटल हो गया, जो हम स्टील की बात करते हैं, गैसेस, तो जब ये इनके कांटेक्ट में आती हैं तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं उनकी फिजिकल में कोई फिजिकली चेंज नहीं होते और केमिकली उनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन. नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ रिफ्रैक्टरीज. वाइड रेंज लिखना है आपको, वाइड रेंज ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू मीट द रेंज ऑफ प्रोसेसिंग कंडीशंस. प्रोसेसिंग कंडीशंस मीन होता, ठीक है. सो इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बिकॉज with the materials with the different properties to meet the range of the processing conditions. Range of processing conditions means whenever you are producing any material, each materials have different conditions to manufacture it. ठीक है, so accordingly we require different categories of the or different range of the refractory materials to meet the demand of the industries. So this is the basic introduction. सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर. ओके, एक मिनट रुको. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि क्या होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, क्या रिक्वायरमेंट होती है, और बेसिकली फिजिको केमिकल चेंजेस. तो वही है ऐसे मटेरियल जो कि हाई टेम्परेचर, विच आर एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट एनी फिजियो केमिकल चेंज. मतलब उनकी फिजिकली वो कोई चेंज नहीं होता है, ना ही वो केमिकली चेंजेस होते हैं. कब? जब वो मटेरियल कॉन्टेक्ट में आते हैं हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में. जैसे कि आपकी फेजेस हो गई, स्टील हो गया, स्टील की मोल्टन स्टेज हो गई, स्लेग हो गया, और बाकी गैसेस होंगे. सर आवाज गायब हो गई. हेलो. हाँ हेलो, अभी ये नहीं आ रही है. चलिए, है ना. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. आई होप यू हैव बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट, what is the requirement, what is the basic requirement of using the refractory material? First thing is to minimize the heat losses from the reaction chamber. तो ये जो आपके रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं वो एक तरीके से हीट लॉस को भी मिनिमाइज करते हैं, बिकॉज दे हैव लेस थर्मल कंडक्टिविटी. second requirement is to allow thermal dependent conversion of chemically reactive reactants into products because metallic vessels are not suitable. दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी मेटेलिक वेसल्स अगर आप यूज करते हो प्रोसेसिंग के लिए या मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो होता ये है, जैसे मान लिया आप लोग स्टील को प्रोड्यूस कर रहे हो और स्टील को मेल्ट कर रहे हो किसी मेटेलिक चैम्बर के अंदर, तो होता क्या है, वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे.
ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे मटेरियल हो जो कि नॉन रिएक्टिव भी नेचर के हों, साथ के साथ हाई टेम्परेचर को बियर कर पाए, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी आर दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग the refractive material. First, to minimize the heat loss from the reaction chamber. Second, to allow thermal energy dependence conversion chemically reactive agents into the products, ठीक है। तो जो भी मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मटेरियल आपके प्रोड्यूस हो जिसमें कोई भी मेटेलिक रिएक्शंस ना हो, उन सारी चीजों को मेंटेन करना, दिस इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। also the other requirements are the refractory materials should also be able to withstand high temperature bear करने वाले होने चाहिए। they should be able sudden changes of temperature, they should be able to withstand that the temperature is 200 degrees centigrade, suddenly the temperature changes to 1200 degrees centigrade, so those materials must also be able to withstand this temperature change also. And load at service conditions, they should also be able to bear the load. Suppose you are producing the steel and the temperature the weight of that steel is very high or more, so those materials must also be able to withstand that much amount of load. And they should be chemical and abrasive actions of phases. Obviously these materials have what? They should be chemically non-reactive. So whenever you are using the material, when they comes in contact with the refractory material, they should not be able to react with that one, ठीक है। तो जो भी मेटल होगा and then metal and refractory metal should not be reactive in the nature, and abrasive actions को भी withstand करता है। abrasive actions का मतलब है कि मान लिया कि आपके पास refractory material यूज किया, आपने पोर किया उस मोल्टन स्लेग को उसके अंदर या मोल्टन मेटल को उसके अंदर, तो obviously whenever anything is flowing the abrasive actions will be taking place, so that material must also be able to withstand these things. So the refractory material should not, next requirement is generally the refractory material should not contaminate the material with which it is in the contact. तो वही है कि contaminate ना करे, कोई भी reaction takes place नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Moving to the next one, I am discussing the molten, you can say the melting temperature of whenever steel making. तो स्टील जब भी बनती है, हमारी स्टील में फॉर्म करते हैं, तो उसमें कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग फेजेस आर इंपॉर्टेंट। तो तीन चीजें मैंने बताई थी, एक तो स्लेग होता है। अब जो स्लेग होता है वो क्या होता है, अभी तीन चीजें बताइए, एक तो स्लेग होता है, एक होता है मोल्टन स्टील होता है, और तीसरी होती है गैसेस। तो ये एक्चुअल में होती क्या है, क्या क्या चीजें, किन चीजों का मिक्सचर होता है। तो अगर हम स्लेग की बात करेंगे तो जो स्लेग होता है, दिस स्लेग इज द मिक्सचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जैसे कि आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, तो इन चीजों, ठीक है, एसिडिक और बेसिक इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनका क्या होता है, ये उनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये सारी चीजें होंगी, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब ये जो स्लेग होता है उसका टेम्परेचर जो है वो 1400 से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वेरी करता है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक वेरी करता है। दूसरा होता है मोल्टन स्टील। तो मोल्टन स्टील में जो होता है आपका आयरन होता है, उस आयरन में दैट कंटेन्स द कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, फॉस्फोरस, ट्रैम्प एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन मेटेलिक इंक्लूजन्स, दीज थिंग्स एंड डिसॉल्व गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड डिफरेंट अलाइंग एलिमेंट्स, निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें हैं, ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए डाल दी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्लेग में क्या क्या चीजें आती है, मोल्टन स्टील में क्या क्या चीजें होती हैं। और गैसेस की जब हम बात करेंगे तो गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, दीज आर कंटेनिंग द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड, ठीक है, एंड द टेम्परेचर रेंजेस 1300 डिग्री टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या, जब हम स्टील फॉर्म करते हैं तो स्लेग होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मोल्टन स्टील होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और जो गैसेस होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीजें जरूरी नहीं है कि आप लोग रखो, लेकिन बेसिकली पता होना चाहिए। The above phases are continuously and constantly in contact with each other and are in the turbulent motion. ये turbulent motion में आपके पास अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जब हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट में केवल और केवल यहां तक पढ़ना है, यहां तक देख लेना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में ये वाली चीजें पढ़नी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर मैं आप लोगों को बताता हूं द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सब
discussing the melting point of some pure compounds used to manufacture the refractory. अब refractory materials को भी कभी कभी मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, तो उनके लिए हमें कुछ मटेरियल्स के मेल्टिंग टेम्परेचर पता होना चाहिए. जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो प्योर सेंट्रेट का 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है. कैल्शियम ऑक्साइड का 2571 होता है. सिलिकॉन कार्बाइड का 2248 होता है. तो दीज आर द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सम commonly used compounds used for the manufacturing of the refractory materials. काओलिन, ठीक है, क्रोमाइट. एक बात याद रखना आप मुझे, एक फायर क्ले भी होता है. ये जो काओलिन होती है ना, ठीक है, ये कास्टिंग के टाइम पे जो सैंड यूज की जाती है वो भी है. कास्टिंग के टाइम पे हम एक सैंड को यूज करते हैं, सॉरी बॉन्ड यूज करते हैं, बॉन्डिंग एलिमेंट यूज करते हैं. आप लोगों को पता होगा मोलासिस के नाम बारे में पता होगा. क्या होता है मोलासिस? यस, टेल मी. तो कायोलिन, तो उस टाइम पे जो सैंड हम यूज करते हैं ना, एक तरीके से बाइंडर यूज करते हैं. तो बेंटोनाइट सैंड होती है, एक बेंटोनाइट. ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया है. बेंटोनाइट टाइप की सैंड होती है, इसको हम एक तरीके से बाइंडर की तरह यूज करते हैं. वी यूज एज अ बाइंडर. उसमें एक कायोलिन भी होता है, तो ये भी एक तरीके से बाइंडर का यूज किया जाता है. इसको भी, ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल जो है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है. ठीक है, क्रोमाइट जो होता है उसकी भी पता होना चाहिए आपको. क्रोमाइट तो शायद और है, आई थिंक आयरन का. चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ये इंपॉर्टेंट है. सो द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड इन द रिफ्रैक्टरी मटेरियल. हम क्या, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज दैट वी रिक्वायर इन अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल. जो भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं आपके पास, या जो भी रिफ्रैक्टरीज होती हैं, हम क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर चाहते हैं. तो पहले अगर हम बात कर देंगे, वैसे नॉर्मली अगर हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, द डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस रिक्वायर्स डाइवर्सिफाइड और डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू मीट द फिजियोकेमिकल एंड थर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट फेजेस. तो जो भी आपका मटेरियल कोई प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे आप एक ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें रहती है, ऐसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है जो फिजियोकेमिकल चेंजेस को रेजिस्ट करे और हाई टेम्परेचर को बियर कर पाए. ठीक है, जो कि जो डिफरेंट फेजेस के टाइम पे हमें मिलता है. अगला, इन सम इंडस्ट्रीज यूनिट मोर देन वन फेजेस आर प्रेजेंट. लाइक अगर हम स्टील मेकिंग की बात करेंगे, तो हमारे पास स्लेग होता है, मोल्टन मेटल होता है, गैसेस, तीनों फेजेस लगभग प्रेजेंट होती है साइमल्टेनियसली at present in the vessel at the high temperature. So and also अगर हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट की, so in heat treatment furnaces solid, reducing or oxidizing gases are also present. The important, so these things we have to we should have a refractory materials that must have all those properties which can resist all these types of ऑल दीज थिंग्स. ये जितने भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, जैसे कि फिजियोकेमिकल चेंजेस को रजिस्ट करे, थर्मल टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल के अंदर होनी चाहिए. अब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो. तो पहली प्रॉपर्टी की जो हम बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्रैक्टरीनेस. रिफ्रैक्टरीनेस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल. हालांकि अगर मैं आपको रिफ्रैक्टरीनेस बताऊंगा, तो रिफ्रैक्टरीनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल due to which it can withstand very high temperature. ठीक है, it is the property of the material, it is the property of the material due to which it can withstand हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपका मटेरियल जो होता है वो हाई टेम्परेचर को बियर कर पाता है. अब इसमें क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टरीनेस इज अ प्रॉपर्टी एट विच ए रिफ्रैक्टरी विल डिफॉर्म अंडर इट्स ओन लोड. तो ये उसकी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपका जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है वो अंडर लोड वो डिफॉर्म हो जाता है इसके ओन लोड की वजह से. द रिफ्रैक्टरीनेस इज इंडिकेटेड बाय पीसीई, that is pyrometric cone equivalent. It should be higher than the application temperature.
तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो एप्लीकेशन टेम्परेचर से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो मटेरियल हो वो अपने लोड की वजह से डिफॉर्म ना हो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आपको रिफ्रैक्टिवनेस में ये वाली लाइन लिखनी है जो मैंने बोला है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर of the molten metal of the various phases of steel making or various phases of material processing। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। पोरोसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पोरोसिटी। पोरोसिटी एंड स्लेग परमिएबिलिटी, मतलब ये होगा कि जो आपका रिफ्रैक्टिव मटेरियल होना चाहिए वो पोरस नेचर का होना चाहिए। ठीक है, पोरस नेचर का होना चाहिए, और स्लेग को परमिएबिलिटी मतलब ये होगा अपने अंदर से उन चीजों को वो निकाल दे, गुजार दे। ठीक है, सो पोरोसिटी अफेक्ट्स केमिकल अटैक बाय मोल्टन स्लेग, metal and gases। decrease in porosity increase the strength and chemical conductivity। तो बेसिकली अगर हम पोरोसिटी की बात करेंगे तो पोरोसिटी कोई भी मटेरियल जो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को अपने अंदर से पास कर देता है। ठीक है, इट पासेस गैसेस और वेपर्स। ये लिखना है, porosity or slake permeability of the material is that property due to which it passes or permit the gases or vapors। ठीक है, ये सारी चीजों को परमिट कर लेता है। इसके बाद देखना है porosity generally affects the chemical attack by the molten slag, metal and gases। decrease in porosity increases the strength and chemical conductivity। तो porosity जितनी कम होती जाएगी, खोखलापन जितना कम होता जाएगा उसके अंदर से, उस मटेरियल की जो भी थर्मल कंडक्टिविटी और स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी दैट द रिफ्रैक्टिव मटेरियल मस्ट हैव। Other property is the strength। obviously strength is also the next property in it is the resistance of the refractory material to the compressive loads, tension and shears। मतलब हो गया कि जो एक्सटर्नल लोड को बियर करने की एबिलिटी जो होती है मटेरियल की वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल लोड क्या हो सकता है, आपका कंप्रेसिव लोड हो सकता है, वो टेंशन हो सकता है और शियर लोड हो सकता है। इन टॉलर फर्नेसेस, जो आपके फर्नेसेस लंबे होते हैं, द रिफ्रैक्टरी हैज टू सपोर्ट हैवी लोड। तो जो आपका रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है वो हैवी लोड को सपोर्ट करता है, बियर करता है। हेंस द स्ट्रेंथ अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो द रिफ्रैक्टरीनेस और द स्ट्रेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू द हाई लोड एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताने की जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रिफ्रैक्टर इज द इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द वेट ऑफ द ब्रेक। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी ऑफ बोल सकते हो एक तरीके से, डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेटल, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेटल, है ना, यही तो होता है क्यों भाई? यस तो अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइट वेट की है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर मान लिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ईंटें होती हैं, ब्रिक होती हैं, एक तो नॉर्मली मिट्टी से बनी होती हैं और दूसरा आप लोगों को पता होगा कि जो ऐश होती है, जो राख होती है, उससे भी ईंटें बन के आ रही हैं। कोयले की जो राख होती है, आप लोगों ने पता होगा कि आजकल ऐसी भी ईंटें बन के आ रही हैं जो कि ऐश से बनी होती है ना, राख से बनी हुई होती है, कोयले की राख से। वो बहुत हल्की भी होती है और मजबूत भी होती है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कॉस्ट ऑफ ब्रेक्स ऑफ हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन दैट ऑफ द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होना चाहिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, इसलिए कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट भी हमें कम पड़ती है। बट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, बट स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक ऑफ हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन दैट वन विद द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी। थोड़ा सा स्ट्रेंथ में भी ये बोला गया कि जो जिस ब्रेक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू द हायर वन। बट वी हैव टू मैनेज द थिंग। हमें ये देखना जरूरी नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन अगर मटेरियल आपका अलग है तो मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। These things will also be depend on the material. ठीक है, बाकी the rest of the properties will be discussing in the next lecture. I am finishing this lecture at this point.